Am I audible to you? Okay. There are 6 chapters given on the board. Is it visible? Chapter 4, Chapter 6, Chapter 12, 13, 21, and 22. These 6 chapters, you don't have to prepare for final exam. Okay? इन 6 चैप्टर को छोड़, इसका क्वेश्चन आंसर छोड़ के रिवीजन करना है, क्योंकि ये आउट ऑफ फाइनल एग्जाम है ये चैप्टर. क्लियर है? हाँ, ऑब्वियसली इनसाइड से डिटेल पढ़ना है. यस, बिकॉज 20 क्वेश्चंस विल बी ऑफ 1 मार्क्स. इट विल बी देयर 20 क्वेश्चंस, जो कि सेम पैटर्न में होगा जो तुम लोग हाफ ईयरली एग्जाम में दिए थे. ठीक है? लेकिन अगर चैप्टर प्रॉपर्ली रिवाइज कर ले रहे हो. यस, व्हाट आर यू सेइंग बाबू? Okay, there may be network problem. I am not able to hear you. So simply write in the chat box. Okay? Write it in the chat box. Okay. Now, Chapter 4, Chapter 6, 12, 13, 21 and 22. These 6 chapters are out of final exam syllabus. ओके तो इसका मतलब क्या हो गया? 1, 2 and 3 चैप्टर इसका मतलब हम लोग को रिवाइज करना है ना? 4 and 6 चैप्टर ज्योग्राफी का छूट रहा है, 12 and 13 चैप्टर हिस्ट्री का छूट रहा है, एंड 21 and 22 चैप्टर तुम्हारा छूट रहा है सिविक्स से. तो आउट ऑफ 7 चैप्टर्स तुम्हारा 2 चैप्टर कम हो गया. 5 चैप्टर्स को रिवाइज करना है फाइनल के लिए. We have already revised chapter 7 yesterday, right? So today we will revise which chapter? Chapter 1. Chapter 1 we will revise today. Are you ready? Okay. Okay. Open the book. From first page, you have to ask questions from your friend. I am giving you 3 minutes to read the first page. Chapter 1. एंड आफ्टर द क्लास आई विल शेयर दैट सिलेबस एसएसटी का, जिसमें किस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, 2 मार्क्स 5 मार्क्स के क्वेश्चन कितने होंगे, यानी वो डिटेल वो शेयर इसके क्लास के बाद आई विल डू दैट. ओके, चलो 5 मिनट से तुम्हारे 3 मिनट से तुम्हारे पास चैप्टर 1 का फर्स्ट पेज पढ़ने के लिए. एंड आफ्टर दैट यू विल आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम योर फ्रेंड. Who? Vashvi? Okay. Just wait, Vashvi. Okay, let me bring you on the screen. Start your video first. Vashvi, start your video. Okay. I'm bringing you on the screen. Okay, Vashvi, ask. Ask. Vashvi, try again. You are asking what is responsible for water logging.
ओके ओके ओके, ओवर इरिगेशन, ठीक है, फॉर वॉट एवर लॉगिंग. ओके, नेक्स्ट, हु वांट्स टू आस्क? यस. नहीं बाबू, तुम्हारी आवाज बिल्कुल नहीं पता चल रही है, बिल्कुल आवाज नहीं पता चल रही है. मे बी देर इज नेटवर्क प्रॉब्लम. एक काम करो, क्वेश्चन को चैट बॉक्स में डालो, आई विल आस्क. बिल्कुल आवाज पता नहीं चल रही है. ठीक है, जिसको क्वेश्चन पूछना है वो चैट बॉक्स में डालो, एंड आई विल आस्क दैट क्वेश्चन फ्रॉम अदर्स. जिसको भी लगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो चैट बॉक्स में लिख के डालो. आई विल आस्क द क्वेश्चन. Okay, I don't see any question here. Send the question. Which countries are generating more wind energy than India? Okay. Who wants to answer this question? Okay, let me share it with everyone through chat. अगर मेरी आवाज भी सही नहीं आ रही है तो चैट बॉक्स में डालने दो ताकि सबको दिख जाए. Okay, I am sharing it through the chat box. Okay. Okay, yes, yes. USA. Okay, okay, ठीक है. Okay. Next question. Dash and dash of a resource varies from time to time and place to place. Okay. नहीं बाबू, ये क्वेश्चन, हाँ ठीक है, सारा आंसर करो. Utility and value. Okay, I am sending this question. Utility and value of resource varies from time to time and place to place. Okay, good. ठीक है. Next question. Which resource is responsible for the development of other resources? Very nice. I am sharing it with everyone. Who wants to answer? Human resource. Human resource. Very nice. Very nice. Good. Very nice. Okay. One more question. Who eats edible plants, roots, flower, fruits, and hunt animals? My God. ये तो सारे, ये तो केवल पिग्मीज ऑफ अफ्रीका नहीं बाबू, सभी खाते हैं. ऑल ह्यूमन बींग्स. ये वाला क्वेश्चन, नो, आई विल नॉट शेयर दिस क्वेश्चन. एनी अदर गुड क्वेश्चन सेंड मी एंड आई विल आस्क फ्रॉम अदर्स. Okay, all the things that are necessary for our existence on this planet are known as, okay, ये question सही है, अच्छा है. Resources. Okay, I have sent this question in chat. Okay, good. Resources, very good. Next question. Okay, first पे से question पूरा हो गया. Yes, ये question जो है, ये question very important question है. अभी जो हम chat box में share कर रहे हैं, check करो. Very important question, एग्जाम में बार बार आता है. Why human needs and wants are neither uniform in all parts of the world nor static over the year. ये question very very important question है, आता है बार बार. Who will answer? Okay, wait. Okay, wait. Just wait. एक मिनट बाबू. ओके, म्यूट किया जा रहा है सबको क्योंकि सबकी आवाज ओवरलैप हो रही है. ओके, नाउ आई हैव म्यूटेड यू. नाउ
कौन स्क्रीन पे दिख रहा है उसका नाम लेके हम बताते हैं. Who will answer? Your cameras are switched off. Why? Okay. I can see Ananya, Ronit, Pragya Raj. You answer. Pragya Raj. Okay. Okay. Nice. Nice. Anybody else who wants to answer? Who? Yashvi. Okay, Yashvi, answer. Mm-hmm. Mm-hmm. Excellent. Okay, very nice. Very nice. ठीक है. Now, anybody else who wants to answer the same question? It is very important question. Ananya? Okay, Ananya, answer. Start your video first. Hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. अथर्व, अनन्या की आवाज नॉर्मल आ रही है क्या? नहीं आ रही है ना? इसका मतलब आज नेटवर्क में प्रॉब्लम है बाबू. नेटवर्क में प्रॉब्लम है. तुम लोग की आवाज बहुत अच्छी नहीं आ रही है. हो सकता है मेरी आवाज भी अच्छे से नहीं जा रही हो, है ना? ओके, मेरी आवाज आ रही है. ठीक है, चलो ठीक है. तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं. अदरवाइज आई विल सजेस्ट इस चैप्टर को एक एक पेज 5 मिनट्स में नेक्स्ट 2 पेजेस यानी पेज 2 और 3 पढ़ना है. फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. ओके, चलो. नेक्स्ट 5 मिनट्स आई एम गिविंग फॉर रीडिंग 2 पेजेस. एक एक लाइन को अच्छे से रिवाइज कर लो बाबू.
Okay. If you have read, you can send the question and I will ask from the group. Let me see chat box. Okay. Which country is termed as a developed country? Okay. I'm sending it in the group for everyone. Which country is termed as a developed country? Who wants to answer? Bolo. USA. Only USA? नहीं बाबू, चाइना डेवलप्ड कंट्री में काउंट नहीं होता है अभी भी. हालांकि वो डेवलप्ड है लेकिन अभी भी WTO में वो डेवलप्ड कंट्री में काउंट नहीं होता है. ठीक है, जबकि वो एक्चुअली डेवलप्ड कंट्री है. ओके, यू विल फाइंड द आंसर. तुम लोग को इसको सर्च करना होगा. ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखा जाता है, पर कैपिटा इनकम, हर एक इंडिविजुअल की कंट्री में एवरेज इनकम क्या है वो देखा जाता है. उसके आधार पे डेवलप्ड कंट्रीज या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज उसको किसी कंट्री को बोलते हैं. ओके ओके, एक और क्वेश्चन है, द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. चैट बॉक्स में देखो, तुम लोग का क्वेश्चन चैट बॉक्स में डाल रहे हैं. ओके, एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर आल्सो नोन एज. ये क्वेश्चन जरूर आता है बाबू. रिन्यूएबल रिसोर्स आर आल्सो नोन एज, ये क्वेश्चन भी आता है. यस यस. इनएग्जॉस्टिबल. इनएग्जॉस्टिबल, जो रिन्यू ना हो सके, नॉन रिन्यूएबल को बोलते हैं एग्जॉस्टिबल, है ना. और जिसको रिन्यू कर सकते हैं, ठीक, उसको क्या बोलेंगे? इनएग्जॉस्टिबल. यस, यानी इसका अगर इस रिलेशन याद रखना हो तो एकदम क्लियर इजी है. रिन्यूएबल है तो इनएग्जॉस्टिबल, उसका अपोजिट. एंड नॉन रिन्यूएबल है तो उसका एग्जॉस्टिबल. ठीक, ओके. अभी एक और क्वेश्चन, द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड अपॉन वेरियस फैक्टर्स. व्हाट आर दोज फैक्टर्स? यस. ओके ओके, सबकी आवाज एक साथ आ रही है, सो आई विल नीड टू म्यूट ऑल. ठीक है, सबको म्यूट करना पड़ेगा, सबकी आवाज एक साथ आ रही है. ओके, चलो 3 पेजेस पढ़ चुके हो कविश? चलो आगे का 2 पेजेस और पढ़ो, आगे का 2 पेजेस और पढ़ो. Five minutes I am giving you. Why USA is called developed country? इसका सिंपल सा एक क्राइटेरिया होता है कि पर कैपिटा इनकम किसी कंट्री की कितनी है. ठीक है, पर कैपिटा इनकम के आधार पर डिवीजन किया जाता है. उसमें लिविंग स्टैंडर्ड भी देखा जाता है. ठीक, तो उसके हिसाब से, क्योंकि अगर पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, मान लो किसी फैमिली की इनकम 2 लाख है पर मंथ, ठीक है, तो अगर किसी कंट्री की एवरेज इनकम 2 लाख पर मंथ आ रही है तो ऑब्वियस है ना कि वो कंट्री डेवलप में आएगी, क्योंकि वो पैसे हैं तो अपने लाइफ के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, फैसिलिटीज के लिए वो फैमिली या वो कंट्री ज्यादा खर्च करेंगे, है ना. तो ज्यादा खर्च करेंगे तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी ज्यादा होगा, इसीलिए वैसी कंट्रीज को डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं. क्राइटेरिया इसमें पर कैपिटा इनकम है, लिविंग स्टैंडर्ड्स, ये सब देखा जाता है. तो ये चैप्टर तुम्हारा उसको कवर नहीं करता है.
कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है, कौन सी नहीं है। ओके, तो अभी हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन निकालो। पहले 2 पेजेस पढ़ो। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स। 5 मिनट्स यू हैव गॉट। तुम्हारे चैप्टर के लास्ट में जो ABC है उससे 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, इसलिए उसको बहुत अच्छे से रिवाइज करोगे। मोस्टली जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्वेश्चंस है, वो ABC में कवर हो जाता है। ABC से 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन निकालना बहुत इजी होता है, इसलिए हर एक चैप्टर का ABC 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर? जितना तुम्हारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है टॉपिक्स का, वो मोस्टली ABC तीनों क्वेश्चंस में कवर्ड हो जाता है। तो अगर तुम लोग हर एक चैप्टर का ABC अच्छे से पढ़ लेते हो तो तुम्हारा 20 मार्क्स में से मैक्सिमम मार्क्स आने का चांस रहेगा। इसलिए ABC को जरूर अच्छे से पढ़ोगे। वो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए, यानी 20 क्वेश्चंस तुम्हारे जो है उसमें मार्क्स देगा तुमको। ओके, सो ABC को अच्छे से रिवाइज करो चैप्टर के। ओके, वन मोर थिंग, तुम लोग को प्रैक्टिस सेट मिला था एग्जाम्स से, स्कूल से एक बार क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट हर एक सब्जेक्ट का मिला था तुम लोग को अपने क्लास टीचर से? वो बहुत पहले आया होगा बाबू, 400 पेजेस का था वो, हर एक सब्जेक्ट का प्रैक्टिस क्वेश्चंस था, CBSE का, DAV का। मिला था ना? मिला था ना? हाँ, तो उसमें 400 पेजेस हैं, इसलिए हो सकता है तुम लोग बहुत सारे उसको डिलीट भी कर दिए हो बिना देखे। तो वो सेट भी चाहिए क्या तुम लोग को प्रैक्टिस करने के लिए? उसको सेंड कर दे तुम लोग के ग्रुप में। अच्छा ठीक है, तो आज हम तुम लोग के ग्रुप में 2 चीज डालेंगे, 3 चीज डालेंगे। एक तो तुम्हारा वीडियो, दूसरा तुम्हारा सिलेबस। वो सिर्फ मेरे सब्जेक्ट का है मेरे पास, तो सिलेबस हम अपने ही चैप्टर का डालेंगे। वैसे तुम लोग सब्जेक्ट टीचर से मांगोगे तो पता चल जाएगा कि उसमें कौन कौन सा चैप्टर नहीं आएगा। ठीक है, तो अपने क्लास टीचर से या सब्जेक्ट टीचर से मांग सकते हो तुम लोग, क्योंकि मेरे पास सिर्फ SST का ही है, तो वो हम तुमको भेज देंगे। एंड वन मोर थिंग, क्वेश्चन सेट, वो भी सारे सब्जेक्ट्स का इकट्ठा ही है, तो वो भी हम शेयर कर देंगे तुम्हारे ग्रुप में। हो सकता है तुम्हारे क्लास टीचर पहले शेयर किए हो उसको, लेकिन हम आज फिर उसको ग्रुप में डाल देंगे। ओके, तो उससे कैसे क्वेश्चन आएंगे वो जरूर देखना, खासकर 1 to 20 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहेगा उसको एकदम अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे। ठीक है, उसमें हमको लगता है बहुत सारा सेट है, तो अगर तुम लोग उससे प्रैक्टिस कर लेते हो तो अच्छा मार्क्स आने का चांसेस बहुत अच्छा रहेगा। ओके, चलो अब क्वेश्चंस आ गए हैं बहुत सारे, अब पूछ लिया जाए। Which planet is known as habitable planet?
चलो चैट बॉक्स में चलते हैं, वहां पे देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आया है. Okay. Which planet is known as habitable planet? Okay, who wants to answer this? Earth. Earth. Very good. Okay. Those resources which obtained from biosphere and having life known as biotic resources. Okay. बायोटिक, ठीक है. बायो जहां भी है इसका मतलब प्लांट या एनिमल, यानी जिसमें लाइफ है. ओके. व्हाट आर बायोटिक रिसोर्सेज? तो ये तो वही आंसर हो गया, दोज रिसोर्सेज विच ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैविंग लाइफ, है ना, बायोटिक रिसोर्स. इसको वन वर्ड में अगर बोले, 1-2 वर्ड्स में, तो प्लांट्स एंड एनिमल्स आर बायोटिक रिसोर्सेज. ओके. विच प्लैनेट, नहीं ये हो गया. विच टाइप ऑफ रिसोर्सेज आर नॉट फुली टैप्ड? पोटेंशियल रिसोर्स. ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू. पोटेंशियल रिसोर्स, इसका डेफिनेशन, पोटेंशियल रिसोर्स का डेफिनेशन पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है. विच टाइप ऑफ रिसोर्सेज आर नॉट फुली टैप्ड? तो पोटेंशियल रिसोर्स, ये मालूम होना चाहिए सबको. ओके. ओके. दूसरा क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट. द रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड डेवलप्ड इन इज कॉल्ड एक्चुअल रिसोर्सेज. वेरी गुड. इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसलिए हम शेयर कर रहे हैं ग्रुप में. द रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड डेवलप्ड इज कॉल्ड एक्चुअल रिसोर्सेज. वेरी नाइस. ओके. डैश मीन्स, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. डैश मीन्स sustainable and optimum utilization of resources. बोलो. सस्टेनेबल डेवलपमेंट. वेरी नाइस. ये सस्टेनेबल तो ऑलरेडी इस वर्ड में है. सस्टेनेबल एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स. यहां सस्टेनेबल नहीं होगा बाबू, क्या होगा? Conservation. Very nice. Conservation means sustainable and optimum utilization of resources. Very good. Okay. Next question. Which country has 25.9% of oil reserves? Saudi Arabia. Very nice. Saudi Arabia has 25.9% of oil reserves. Okay. Next, ये क्वेश्चन भी which type of, इसको शेयर कर रहे हैं. Which type of resources need a detailed survey for estimating their quality and quantity? जल्दी बताओ. देखो अंतर समझो. जहां पे सर्वे हो चुका है एंड क्वांटिटी एंड क्वालिटी पता चल चुकी है, उसको बोलते हैं एक्चुअल रिसोर्स. लेकिन जहां पे सर्वे होना बाकी है, अभी क्वांटिटी एंड क्वालिटी डिटरमाइन नहीं हुई है, उसको बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्स. क्लियर है? समझ में आ रहा है? ओके. नाइस. ठीक है, तुम लोग अच्छा क्वेश्चन भेज रहे हो. गुड. ठीक है, नाइस. ओके. और कोई क्वेश्चन है? लेट मी सी. चलो अब नेक्स्ट 2 पेज, अब जो बचा हुआ पेज है वो पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चन डालना शुरू करो. देन आई विल आस्क आंसर्स. ओके. और क्या है? चैप्टर एंड हो गया. ओके. ठीक है बाबू. ओके. 1-2 क्वेश्चन और है, देन लेट मी आस्क. Dash is possible of a resource by applying skill and technology on resources.
यस, वैल्यू एडिशन, ठीक है, वैल्यू एडिशन इज पॉसिबल, ठीक है। अगर उस पर स्किल एंड टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं तो उसका वैल्यू ऐड हो जाता है, बढ़ जाता है वैल्यू। ओके नाइस, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट मी सी। डैश मीन्स लैकिंग इन मूवमेंट और नॉट चेंजिंग। बाबू इस तरह का इतने इनसाइट से कोई भी लाइन से क्वेश्चन नहीं आता है। जो हेडिंग हो, बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन हो, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो, उससे क्वेश्चंस बनता है। कोई भी लाइन उठा के क्वेश्चन नहीं बनता है बाबू। ओके ओके, बताओ। स्टैटिक मीन्स, ठीक है, वो समझने के लिए दिया हुआ, उससे क्वेश्चन नहीं बनेगा बाबू, वो समझने के लिए है। स्टैटिक मीन्स लैकिंग इन मूवमेंट एंड नॉट चेंजिंग, वो समझने के लिए। लेकिन हाँ, मीनिंग समझोगी तभी तुम क्वेश्चन भी समझ में आएगा तुमको, तो कीवर्ड्स को भी रिवाइज करना जरूरी है। ओके, क्या? ग्रीड, GREED, ये तो बहुत सिंपल वर्ड है बाबू। लालच, ग्रीड, लालच। एनी मोर क्वेश्चन? किसी का कोई और क्वेश्चन है?